रखना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे इज संडे एंड टुडे वी हैव अनदर सेशन ऑफ माइंड स्पार्कल सीरीज. This Mind Sparkle series is an online initiative to bring to you people from all walks of life who are experts in their fields. Those fields which we encounter every day through our jobs, through our works, through our aspirations, and those fields in which we want to see ourselves down the line, or we want to see our near and dear ones accomplish those things, or to go into those areas of employability and service and vocation. So every Sunday, we bring in experts from those fields for the last 2-3 months. So our intention is to keep your mind engaged, keep you engaged with the latest trend in those fields. What is happening? What are the career prospects? What are the entrepreneurial prospects? What are the prospects to progress in those fields? So we want to engage young minds, those minds who are aspiring to be successful in different fields. And please remember, those people are not only experts of their field, they are experts in other personal fields also, like how to succeed, how to inculcate those habits which make you successful through their own personal journey, through their own commitment, dedication, and service to their cause. They have learned all these lessons in their life, which can be very helpful to those all audiences who want to imbibe those qualities. So keeping all these things in mind, when the pandemic was going, we thought that let the roads close, let the shops close, let the bridges close, let the trains and transportation close, tourism close, but our mind should not close at all. We should always open up our minds so that whenever the next opportunity knocks on our door, we should be really prepared for that. Otherwise, what would be happening? We would be lamenting these days, and we will passing those days without learning anything to be successful in the coming future. Future is always bright. Please remember, after every dark night comes a bright sunny days. So let's prepare for those sunny days, and what best to do than to listen to the experts. So इसीलिए हम लोगों ने ये माइंड स्पार्कल सीरीज शुरू किया, जस्ट टू स्पार्कल योर माइंड. और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ डॉक्टर वसीम रहमान है, जो IRS ऑफिसर है, 2008 बैच के सिविल सर्वेंट है, ऑल इंडिया सिविल सर्विस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है. और सबसे बड़ी बात है कि ये डॉक्टर है यूनानी के, और ये MD भी है. ये यूनानी हमदर्द मेडिकल कॉलेज से की है, दिल्ली से, फिर अलीगढ़ तिब्बिया से, और काफ़ी इनको जानकारी है ये अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में. ये जो है यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में जितने भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आते हैं, सबके बारे में इनकी जानकारी है. ये हमें आज 3 मौजू पे बात करेंगे. एक तो है करियर प्रोस्पेक्ट, इसमें क्या है. दूसरी मौजू है कि भाई हेल्थ से रिलेटेड इसमें क्या क्या मतलब कि हमारी गुंजाइशें हैं, और मतलब क्या कर सकते हैं हेल्थ में, आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्पेशली यूनानी. और थर्ड है बिजनेस पॉसिबिलिटीज क्या है, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज क्या निकाल सकते हैं इस आयुष के फील्ड से, यानी यूनानी के फील्ड से, आयुर्वेदा के फील्ड से, सिद्धा के फील्ड से. तो ये जानकारी हम सबों के लिए इसलिए जरूरी है कि नजरिया हमेशा हर जगह होनी चाहिए. सिर्फ एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन या एक सिस्टम ऑफ मतलब कि हम पैरवी करना शुरू कर दे, वो भी ठीक नहीं है. नजरियात हमारी मतलब कि हर तरह होनी चाहिए, जो पब्लिक को सूट करे या जो हमें अच्छा लगे उसके तरफ हम जाए. हमें चॉइसेस मिलनी चाहिए, हेल्थ सेक्टर में हो और या फिर मतलब अपनी जिंदगी के अपने लाइफ स्टाइल्स में हेल्थ से रिलेटेड, तो हमें चॉइसेस होनी चाहिए. तो वन ऑफ द चॉइसेस इज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. इससे पहले कि मैं डॉक्टर वसीम को दूं, मैं एक मशहूर वाकया बयान करता हूं अबू बकर मोहम्मद इब्न राजी के जिंदगी से, जो एक बहुत बड़े मुफक्किर और बहुत बड़े मतलब कि पाए के बुजुर्ग कह लीजिए, फिलासफर कह लीजिए, और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के वन ऑफ द ओरिजिनेटर कह लीजिए. उनकी जिंदगी से एक बहुत ही मशहूर वाकया है, जिसको प्रोफेसर अरबेरी ने अपनी किताब द स्पिरिचुअल फिजिक्स ऑफ अल्बेरी में 1908 में लिखी थी. काफी मशहूर किताब है. अगर मौका मिले तो उस किताब को जरूर पढ़िएगा. अगर उर्दू में है तो उर्दू में पढ़िए, अगर अंग्रेजी में तो है ही. प्रोफेसर अरबेरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के थे. उन्होंने अबू बकर अल राजी, जिसको वेस्ट में रेस के नाम से जाना जाता है, रासिस के नाम से जाना जाता है, और जिनको वन ऑफ द ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहते हैं. मीजल्स और मतलब कि स्मॉल पॉक्स पे उनकी जितनी काम है, शायद किसी ने उतना काम किया हो. आज भी मीजल्स और चिकन पॉक्स पे अगर
दो चार लोगों की नाम ली जाए साइंटिस्ट की, तो अर राजी की नाम, रेस की नाम जरूर मतलब कि लिया जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि समरकंद और बुखारा के जो बादशाह थे, जो आज ट्रांसऑक्सेनिया समझ लीजिए उज्बेकिस्तान है, पहले समरकंद और बुखारा के नाम से मशहूर था। ये 9th सेंचुरी या 10th सेंचुरी एडी की बात है। उनको पैर में बहुत ज्यादा एक मतलब की तकलीफ होनी शुरू हुई जख्म से। तो उन्होंने काफी लोगों से पूछा कि ऐसा कौन शख्स है जो मुझे ठीक कर दे, पूरे दुनिया में ऐसा कोई है क्या। काफी डॉक्टर से मशवरा किया गया, तो सबने बताया कि एक ही है, अबू बकर इब्न राजी। वो रहते हैं रे में, जो ईरान में आजकल है। उनको अगर बुलाया जाए तो शायद कुछ मतलब कि आपके हालात सुधर जाए। तो उन्होंने काफी लोगों को भेजा। राजी आने से काफी दूर था उस जमाने में, आने से मना करते रहे, बट ये बार बार खत लिखते रहे, अपने मैसेंजर भेजते रहे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने राजी हो गए कि भाई चलते हैं। जाने के बाद पता चला कि जो ऑक्सस नदी है उसको क्रॉस करना है। ऑक्सस नदी आज भी काफी मतलब कि बारिश का मौसम था, रिवर फुल स्पीड में थी। तो वो वहां से वापस हो गया, कहने लगे भाई मैं नहीं जा पाऊंगा। अब ये बादशाह को जब ये बताया गया तो बादशाह काफी मतलब कि उतावल हो गया, भाई इतना बड़ा मुफक्किर इतनी नजदीक आ चुका है, नदी के उस पार में है और हम मिल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर बुलाइए उनको। तो अर राजी ने क्या किया, उन्होंने जो 10-15 दिन वहां बैठे, उन्होंने किताब लिख दी भाई, कि एक बादशाह के मर्ज के ऊपर मैंने किताब लिखी कि हमारी जरूरत नहीं है, आप ये किताब अगर पढ़ ले तो आपका इलाज हो जाएगा। तो उसी किताब के नाम से उनकी एक बहुत मशहूर किताब है अल मंसूरी, जो आज भी मतलब कि बहुत मशहूर माना जाता है। और उनकी एक किताब है अल किताब अल हावी, 23 वॉल्यूम में है। एनाटॉमी पे है, फिर उस पे गायनोकोलॉजी पे है, ऑब्स्टेट्रिक्स पे है। किसी चीज की ऐसी बाकी नहीं है जिसपे उन्होंने 23 वॉल्यूम की किताब नहीं लिखी हो। और सबको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किया है। ये अलग बात है कि हम नहीं पढ़ते हैं। तो बात ये हुई कि बादशाह फिर भी सलामत राजी ना हुए, उनको मतलब दीदार करना था अर राजी का। तो उन्होंने कहा कि भाई इतने बड़े मुफक्किर है, एक रिस्क लेते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अपने लोगों से कि भाई उनको जबरदस्ती किडनैप करके ले आओ, हम उनको देखना चाहते इतने बड़े मुफक्किर को, पर उनको नहीं बताना, बाद में हम माफी मांग लेंगे उनसे। तो बादशाह का फरमान था, सिपाही आए, उनको पूरा हाथ वाथ बांध दिए और कैद करके बोट में रख के ले आए। और ये काफी नदी से डरते थे, और राजी उनको पानी से डर लगता था इतनी बड़ी बारिश में। पकड़ के लेके बादशाह के पास आए, तो बादशाह सलामत ने फिर उनसे मिला और माफी मांगा, कहा कि भाई गुस्ताखी हो गई, इतने बड़े मशहूर लोग को मैं बिना देखे नहीं जाने देना चाहता था, तो हमारी गुस्ताखी। तो ये थे उस जमाने के लोग, और ये थे ऐसी उनकी जो इंटेलेक्चुअलिज्म थी, और जो मुफक्किर थे, और जो मतलब कि फायदा पहुंचाते थे लोगों को। तो ऐसे मतलब कि बताने से ये मतलब है कि एक सिस्टम ऑफ चॉइस भी होना लोगों को, और ऐसे लोगों के जो मेडिसिन निकला उसको भी हम जाने। और मैं कह दूं, अर राजी एक पहला शख्स था जिन्होंने एक जनरल मेडिसिन की किताब लिखी आम पब्लिक के लिए। इससे पहले कोई भी किताब नहीं लिखी गई थी जो आम पब्लिक खुद पढ़ के अपना इलाज कर सके। इस किताब की नाम है अ मेडिकल एडवाइजर फॉर जनरल पब्लिक। दुनिया की पहली किताब है जो जनरल पब्लिक के लिए उन्होंने लिखा कि भाई सबको फायदा हो ये किताब पढ़ के। तो ये अर राजी थे, और ये अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन थी। और मैं माजरत चाहता हूं कि काफी देर लिया, अब डॉक्टर वसीम के हवाले करता हूं, और ये अब सेशन मुखातिब करेंगे सबको। डॉक्टर वसीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज है हमारा जो टॉपिक है आयुष, और आयुष के तहत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में करियर कैसा रहेगा, हेल्थ के ऊपर क्या चीजें उसमें है, बिजनेस का क्या स्कोप है, ये हमारा टॉपिक है। ये तीनों सब टॉपिक में कोई बाउंड्री खींचना बहुत मुश्किल है। सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल उसी यूनानी की तरीके से जैसे हमारे यूनानी में होलिस्टिक अप्रोच किया जाता है। किसी भी एक बीमारी को ठीक करने के लिए कई तरीके से दवाएं दी जाती हैं, और उसका फिर इलाज किया जाता है। इसी तरीके से जो हमारी इसमें जो फैक्ट्स और जो बातें रहेंगी उसमें तकरीबन तीनों पॉइंट आ जाएगा। हाँ, कुछ पॉइंट अलग से उस पर भी बताया जाएगा। और एक चीज हम और शेयर करें कि हमारे
साथ एक हमारे दोस्त डॉक्टर ओसामा अकरम जो रिसर्च ऑफिसर हैं आयुष मिनिस्ट्री में, CCRO में, वो भी बाद में आयुष से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के जवाब के लिए रहेंगे। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट में मौजूदा चल रहा है इस वक्त, उसके बारे में वो बताएंगे। हम सबसे पहले आयुष मिनिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि ये मिनिस्ट्री 9 नवंबर 2014 में बनाई गई। 2014 में इसको मंत्रालय का दर्जा मिला। इसके पहले ये एक डिपार्टमेंट होता था, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, और ये डिपार्टमेंट भी कब बना था? 2003 में। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जब बना था उस वक्त उसका पूरा नाम था डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सब मिल करके आयुष कहलाता था। 2003 से पहले जो ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता था, और उसका पूरा नाम 1995 में ये बना था ISM&H, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। यानी होम्योपैथी का डिपार्टमेंट अलग था, इसके अलावा जितने ट्रेडिशनल सिस्टम हैं उस सब के लिए उस सब को इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में शामिल किया गया था। ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनने। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनने की वजह क्या रही? इसको बनाने के पीछे मकसद ये रहा कि ताकि ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ये जो हमारा निज़ाम है, इसको प्रमोट किया जाए और इसको तरक्की दी जाए। इसलिए जाहिर सी बात है, जब एक डिपार्टमेंट से कोई डिपार्टमेंट मंत्रालय में कन्वर्ट हो जाता है, मिनिस्ट्री बन जाती है, तो उस पर उसके रूल्स, उसके एलोकेशन, उसके बजट, उसकी पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें अप्लाई होती हैं, और उस डिपार्टमेंट को यकीनन मंत्रालय में कन्वर्ट होने के बाद में बहुत ज्यादा तरक्की का मौका मिलता है। मैं बता दूं कि इस वक्त जो आयुष है, आयुष में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, उसमें से एक है आयुर्वेदा, उसके बाद योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी, सोवा रिगपा। एक नया डिपार्टमेंट को इसमें जोड़ा गया है, नई पैथी को जोड़ा। बेसिकली पैथी नई नहीं है, लेकिन आमतौर पे लोग वाकिफ नहीं होंगे। सोवा रिगपा ये भी एक पैथी है, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसको भी आयुष में जोड़ा गया है। ये बेसिकली इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए कि बाकी सब नाम से आमतौर पे लोग वाकिफ हैं, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, लेकिन सोवा रिगपा पे शायद कुछ लोगों को आगाही ना हो। ये बेसिकली हिमालयन एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो काफी कुछ हमारे आयुर्वेद से मिलता जुलता है, लेकिन ये दवाएं ज्यादातर हिमालय पे मिलती थी। तो बुद्धिज्म के साथ साथ ये सिस्टम पूरा वहां पे डेवलप किया, और इसके अलावा इंडिया के अलावा मंगोलिया और रशिया में भी इसका चलन है। तो ये सोवा रिगपा इस सिस्टम को भी इसमें शामिल किया गया। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में ये तमाम डिपार्टमेंट आते हैं। अब मैं बताऊं कि ये मिनिस्ट्री के अंडर में ये ट्रेडिशनल मेडिसिन को, ट्रेडिशनल सिस्टम को तरक्की देने के लिए सबके अपने इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट हैं। जैसे कि हम एक एक सिस्टम के एक एक इंस्टीट्यूट को बताते चलें। आयुर्वेदा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी पुणे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई में। सिद्धा बेसिकली ये साउथ इंडिया की मेडिसिन है। डीप साउथ में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन ने सबसे ज्यादा अपने आप को संभाल के रखा, वो सिद्धा कहलाती है, इसीलिए उसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो चेन्नई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर में अभी जल्दी इसका कयाम हुआ है। यूनानी का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो बेंगलोर में है। इसी तरीके से राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली में बनाया गया।
तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम को मजबूत करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को काम करने में इनसे काफी मदद मिलती है। हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और पॉइंट बताना चाहते हैं कि कितने कॉलेजेस होंगे, कितने डॉक्टर्स होंगे, कितने हॉस्पिटल्स होंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आते हैं। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं यूजी कॉलेज। यानी यूजी कॉलेज का मतलब ये है कि जिसमें ये बेसिक डिग्री आदमी हासिल करता है। जैसे यूनानी की जो डिग्री होती है उसका नाम है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यूनानी जो कॉलेजेस होते हैं वहां से ये डिग्री मिलती है और पूरे के जो कॉलेजेस हैं वो तकरीबन 39 यूनानी कॉलेजेस हैं जहां से BUMS आदमी कर सकता है। आयुर्वेद के यूनानी यूजी कॉलेज यानी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज वो तकरीबन 254 से ज्यादा। इसी तरीके से होम्योपैथी के 185 है। इसी तरह सिद्धा के 7 हैं। ये कॉलेजेस हैं। इसी तरीके से इसके बाद में हम देते हैं पीजी कॉलेजेस भी हैं, यानी कि अब इसमें MD भी लोग करते हैं, यूनानी से भी MD, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, होम्योपैथी से। और पीजी कॉलेजेस भी हैं, जैसे आयुर्वेद के 64 पीजी कॉलेजेस हैं। इसी तरीके से यूनानी के 6 पीजी कॉलेजेस हैं। और अगर हम टोटल का हिसाब लगाएं तो तकरीबन यूजी और पीजी दोनों यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ये सब मिला करके आयुष के सिस्टम में जो कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में वो 500 से ज्यादा। और इसमें जो एडमिशन की कैपेसिटी है, जो लोग इसमें पढ़ सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आयुष डॉक्टर बन सकते हैं, उनकी कैपेसिटी हर साल तकरीबन 30,000, यानी हर साल 30,000 लोगों का आयुष सिस्टम में एडमिशन हो सकता है। इसी तरीके से आयुष सिस्टम के रूरल तक, ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए डिस्पेंसरीज का कंसेप्ट है। बहुत से जिलों में, स्टेट्स में यूनानी डिस्पेंसरी, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, वो सभी को अब आयुष कहा जाएगा क्योंकि आयुष एक मंत्रालय है, उसके अंडर में डिफरेंट डिपार्टमेंट अपने अपने अंदाज पे काम करता है। तो डिस्पेंसरीज तकरीबन सबकी होती हैं, उसमें आयुर्वेद की, यूनानी, पैथी, सिद्धा, योगा सभी की हैं। वो डिस्पेंसरीज तकरीबन 3,000 से ज्यादा है, नहीं 3,000 से ज्यादा हॉस्पिटल है, सॉरी 3,000 से ज्यादा यूनानी, ये सब आयुष के अंदर हॉस्पिटल्स हैं। डिस्पेंसरीज तकरीबन 24,000 है। डिस्पेंसरीज जो पूरे इंडिया में है वो तकरीबन 24,000 है। ये कुछ ऐसा था जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आयुष का। हम लोग जल्दी से इमेजिन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में, मुल्क में आयुष का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिखरा हुआ है, वो बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से इसमें रिसर्च के लिए और एजुकेशन के लिए भी जरूरत पड़ती थी। इसके लिए सभी लोगों ने, आयुष मंत्रालय में रिसर्च काउंसिल्स हैं। रिसर्च काउंसिल्स का मतलब है कि जो लिटरेरी वर्क के लिए, एजुकेशन के लिए, सर्वे के लिए, क्लिनिकल वर्क के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सब सिस्टम में अपनी अपनी काउंसिल्स बनाई है। यूनानी काउंसिल CCRUM कहलाता, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। ये 1979 में इसका क़याम हुआ था। इसी तरीके से सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा मेडिसिन, इन सिद्धा मेडिसिन, इन होम्योपैथिक, तो सभी के CCRU, सभी के सेंट्रल काउंसिल हैं। उन काउंसिल्स के जरिए रिसर्च का वर्क है, लिटरेरी वर्क है और सर्वे है, क्लिनिकल सर्वे है। ये तमाम काम काउंसिल के अंडर में आता है। अभी जैसे कि यूनानी का जो रिसर्च काउंसिल है, इस वबा के टाइम पर भी उसके बहुत सारे काम, मतलब गाइडलाइन बनाना, सर्वे कराना, दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन करना, डाटा कलेक्ट करना, इस तरीके से वक्त के हिसाब से जो जो चीजों की जरूरत होती है वो डिपार्टमेंट अपने काउंसिल के जरिए से करता है। तो काफी कुछ काम किया है। फिर उस काउंसिल के अंडर में
या आयुष में एक इसके अलावा बहुत सारे छोटे इंस्टीट्यूट होते हैं। सेंट्रल काउंसिल में 22 इंस्टीट्यूट ऑफ हैं इसमें यूनानी के, जो उसके रीजनल रिसर्च सेंटर हैं या सेंट्रल रिसर्च सेंटर हैं, ये सब उसमें आते हैं। उनके जरिए से ये पूरे इंडिया में, मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत बड़ी तादाद में पूरी इंडिया में मौजूद है। हर चीज के लिए तकरीबन ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और काम भी हो रहा है। अगर हम आते हैं इस पे बिजनेस के एस्पेक्ट में, तो हमें देखना पड़ता है कि इसका प्रोडक्शन कितना है, इसमें क्या दवाओं की क्या बिजनेस का स्कोप है, कितना इसमें फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का क्या स्कोप है। मौजूदा तकरीबन 8000 से ज्यादा यूनिट हैं जिनको लाइसेंस मिला हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, हर्बल ड्रग, मेडिसिन। और आप लोगों को तो मालूम होगा कि पतंजलि ही अकेले तकरीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा का उसका टर्नओवर है। इसी तरीके से हर्बल प्रोडक्शन के लिए हमदर्द है, हिमालय है, डाबर है, ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो जिन्होंने इसमें हर्बल प्रोडक्शन में अपना काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा टर्नओवर इनका है, बहुत बड़ा टर्नओवर है। तो ये हमारा प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। लाइसेंस जिनको मिला हुआ है वो तकरीबन 8000 से ज्यादा यूनिट्स हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें है, अभी ये वेलनेस सेंटर्स, ये आयुष मंत्रालय ने वेलनेस सेंटर बनाने की भी बातें की हैं और स्कीम भी इसके लिए लाई है और शुरू भी कर दिया है। अभी 25 को यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में तकरीबन 25 वेलनेस सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ, कायम किया गया है वेलनेस सेंटर, जहाँ पे आयुष के तमाम सिस्टम की दवाएं मौजूद होंगी। और अभी मैं एक अखबार में मैंने देखा कि नीति आयोग बनाया गया है और वो इस बात पर काम कर रहा है कि क्यों ना एक नेशनल कमीशन बनाया जाए और क्यों ना तमाम पैथी को इंटीग्रेट कर दिया जाए। इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि जैसे हॉस्पिटल में एक मरीज जाता है, उसको एलोपैथी के ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत मर्तबा उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी जरूरत होती है। आम जिंदगी में भी बहुत सारे लोग, कोई होम्योपैथिक साथ में खाता है, कोई आयुर्वेद लेता है, कोई यूनानी लेता है और एलोपैथिक भी साथ में ट्रीटमेंट करता है। तो इस पर गौर हो रहा है कि क्यों ना हमारे हॉस्पिटल में बाज़ाब्ता इसका एक निज़ाम हो जाए कि हॉस्पिटल में मरीज हो, एलोपैथिक हॉस्पिटल में हो, ठीक है, लेकिन अगर उसको वहां पे जरूरत है यूनानी मेडिसिन की, तो यूनानी एक्सपर्ट उसी हॉस्पिटल में मौजूद रहे और वो उस मरीज को देख करके यूनानी दवाएं प्रिस्क्राइब कर दे। आयुर्वेद का एक्सपर्ट मौजूद रहे, होम्योपैथिक का एक्सपर्ट मौजूद रहे और वो उसको मरीज को एलोपैथिक के साथ साथ ये दवाएं भी उसको दे। इस बात पर गौर हो रहा है और रिजल्ट बेसिस इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि किस मरीज को कौन सा सिस्टम की दवा दी जाए। तो जब ये निज़ाम बनेगा तो इस पर डाटा कलेक्ट होगा, किन बीमारियों में कौन सी दवाएं ज्यादा इफेक्टिव हैं, उस बुनियाद पर उस सिस्टम के मरीज को, उस तरीके के पेशेंट को दवाएं दी। इस पर गौर हो रहा है और मेरे समझ से इसकी जरूरत भी है। तो बहरहाल आयुष ये हेल्थ वेलनेस सेंटर भी बनाया जा रहा है और ये तमाम पैथी को इंटीग्रेट करने की भी कोशिश की जा रही है। अब हम आते हैं ये जो इस वक्त मौजूदा हालत में आयुष ने क्या किया है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कोविड-19 के आने के बाद में आयुष मिनिस्ट्री ने बहुत सारा वर्क किया है। सबसे पहले तो उसने ये है कि एक एडवाइजरी तमाम डिपार्टमेंट से मशवरे लेकर के, उनके प्रपोजल लेकर के एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी ये जारी किया कि क्या चीजें करना चाहिए, क्या चीजें नहीं करना चाहिए, जो पब्लिक तक पहुंची और बहुत सारे लोग उससे अवेयर हुए, बहुत सारे लोगों ने उस पर अमल करना भी शुरू किया। इसी तरीके से जो हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जितने यूनानी अलग, आयुर्वेद अलग, सिद्धा अलग, आयुष ने तमाम डिपार्टमेंट को सबसे उनकी एक प्रपोजल मांगा, प्रपोजल नहीं, उनका एक गाइडलाइन मांगा। और हमें यूनानी के गाइडलाइन के बारे में ज्यादा आइडिया है तो इसलिए मैं बता रहा हूं उसको। उसी पैटर्न पर सारे सिस्टम ने किया है
कि CCRUM ने, सेंट्रल रिसर्च काउंसिल फॉर यूनानी मेडिसिन ने पूरे इंडिया के हकीमों से, पूरे इंडिया के पढ़े यूनानी के लोगों से प्रपोजल मांगे। वो तमाम लोगों ने प्रपोजल रिसर्च अपने डॉक्यूमेंट की बेसिस पर कि कोविड-19 के लिए लिटरेचर के हिसाब से कौन सी चीजें दी जा सकती हैं, उसकी बुनियाद पर एक गाइडलाइन बनाई गई। वो गाइडलाइन किसके लिए बनाई गई? प्रैक्टिशनर के लिए, क्योंकि आम पब्लिक के लिए वो गाइडलाइन नहीं यूजफुल हो सकती थी। तो अपने डॉक्टर्स के लिए, जो यूनानी फिजिशियन हैं, उनके लिए काउंसिल ने गाइडलाइन बनाई कि जो लोग यूनानी प्रैक्टिस करें वो इस गाइडलाइन में कोविड-19 के लिए, इस महामारी के टाइम पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। और उसमें काउंसिल ने बहुत मतलब वाज़ेह तरीके से लिखा कि आप इस गाइडलाइन के अंडर में अपनी और अपनी फैमिली और अपने मरीजों का इलाज करें। ये गाइडलाइन आयुष के साइट पर अवेलेबल है। इसी तरीके से तमाम डिपार्टमेंट ने, तमाम सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने, आयुर्वेद ने अपनी अलग गाइडलाइन बनाई, सिद्धा ने अपनी अलग गाइडलाइन बनाई, होम्योपैथिक ने अपनी अलग गाइडलाइन बनाई। सभी लोगों ने अपनी गाइडलाइन बनाई और उसको लोगों तक पहुंचाया गया और बहुत सारे लोग उसी गाइडलाइन की के हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट करना भी शुरू किया है। उसमें एक बड़ी लंबी बातें हैं कि कहाँ पे क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, लेकिन उस गाइडलाइन में सीधा सा ये था कि आप सिम्टोमेटिक इलाज करेंगे, किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन जो भी मरीज आपको अप्रोच करता है उसको आप अपनी गाइडलाइन के तहत इलाज करें। तो ये आयुष का एक कोविड-19 के लिए एक बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन है और गाइडलाइन। इसके अलावा सब सिस्टम के तहत, जैसे कि यूनानी है, आयुर्वेद है, सब सिस्टम ने अपने अपने तौर पर गवर्नमेंट के उससे दवाएं भी डिस्ट्रीब्यूट की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए गए और डाटा कलेक्ट हो रहा है। उसका रिसर्च वर्क एक तरीके से क्लिनिकल वर्क भी चल रहा है। ये है। अब हम आते हैं ये यूनानी सिस्टम पे थोड़ा सा ब्रीफ करके, और फिर हम उसके बाद में यूनानी सिस्टम क्या है, यूनानी क्या चीज है, ये कैसे काम होता है, इसका हेल्थ में इसका क्या योगदान। तो यूनानी की हिस्ट्री में थोड़ा सा अभी बताता चलूं कि ये यूनान एक मुल्क का नाम है जिसको ग्रीस कहा जाता है। आज के 3000 साल पहले, तकरीबन 2500-3000 साल पहले, वहां पे जो मेडिकल सिस्टम था, जो मेडिसिन थी, वो मेडिसिन बाद में फिर जब अरब दौर आया, अरब जब सिविलाइज्ड हुए, तो उन लोगों ने उस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, जो उस वक्त तरक्की पा चुका था, उसको अपना लिया। फिर अरबों ने यूनानी सिस्टम में उस वक्त के मौजूदा जितने ट्रेडिशनल सिस्टम थे, सीरिया के, मिस्र के, इराक के, ईरान के, ये तमाम सिस्टम को उन्होंने उसको समेट दिया और समेट करके उसको यूनानी का पार्ट बना दिया। उसके बाद में फिर ये हमारे इंडिया में यूनानी क्या है, इंडिया में फिर मुस्लिम रूलर का जब आना शुरू हुआ तो उनके साथ साथ हकीमों का भी आना शुरू हुआ, और यहाँ फिर इंडिया में ये हकीमों ने आकर के और यहाँ पर दवा इलाज शुरू किया। और खिलजी दौर से पहले तक ये इंडिया के जो लोग बाहर से आए वो उन्हीं के उसूलों को फॉलो करते थे, जो मिडिल ईस्ट, जो अरब के उसूल थे, मिडिल ईस्ट के जो सेंट्रल एशिया के जो रूल थे, इब्न सीना वगैरह को, उन्हीं हकीमों को वो लोग फॉलो करते थे। लेकिन इंडिया में आने के बाद में जैसे जैसे ये तुगलक डायनेस्टी आई, मुगल आए और ये सब लोग स्टेबल हुए यहाँ पे, तो इनको 2-3 परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो परेशानी ये थी कि यूनानी के लिए जो दवाएं उनकी किताबों में लिखी थी वो कुछ और थी, और इंडिया में वो दवाएं अवेलेबल नहीं थी। इंडिया का मिजाज अलग है, यहाँ का माहौल अलग, यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है। तो फिर खिलजी दौर से ही ये कोशिश शुरू होने लगी कि यहाँ की दवाओं पर रिसर्च होने लगी। सबसे पहले बड़ा काम ये उन लोगों ने फिर किया कि वो नॉलेज के साथ साथ यहाँ की आयुर्वेद को सीखना शुरू किया। आयुर्वेद को, उसके लिए उन लोगों ने संस्कृत भी मतलब पढ़ा और सीखा, और आयुर्वेद की दवाओं पर किताबें लिखी, उसको सीखना समझना शुरू किया। और इतना ज्यादा उस पे काम हुआ, बल्कि एक किताब है इनकी है, उसका नाम है गंजीने सिकंदर शाही। उससे अंदाजा होता है सिकंदर लोधी ने अपने लोगों को ऑर्डर किया तो उन लोगों ने एक बुक लिखी जो आयुर्वेद की 12 किताबों से लेकर के
और एक किताब तैयार की गई। वो किताबों को ट्रांसलेशन करने के लिए, उससे जो है मटेरियल इकट्ठा करने के लिए संस्कृत भी इन लोगों को सीखना पड़ा। उसके बाद में एक किताब लिखी गंजीने सिकंदर शाही। इसमें तकरीबन आयुर्वेद के बहुत सारे नॉलेज को ट्रांसलेट कर लिया, फारसी में ट्रांसलेट ही नहीं, मतलब वहां से लेकर के एक नई बुक बना दिया। इसी तरीके से और भी कई किताबों में, एक मजमूए ज़ियाई करके है, उसमें भी ऐसा ही वर्क है। और उसमें तो एक इंडिया में जो जानवर, जो चिड़िए, जो परिंदे, जो दवाएं हैं, उनके ऊपर पूरा एक चैप्टर लिखा। मेरा कहने का मतलब यह है कि इंडिया में जब हम यूनानी बोलते हैं, जो इतनी हिस्ट्री बताने का मकसद ये था कि जब हम इंडिया में यूनानी बोलते हैं तो वो वाला यूनानी नहीं है जो यूनान में था। उसका एक बेसिक कंसेप्ट जरूर है, वहां से चला आया बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नजरियात, लेकिन उसमें हर जमाने में एडिशन होता गया। और अरब टाइम पे मिडिल ईस्ट के जो ट्रेडिशनल नॉलेज थे वो यूनानी में जुड़ गए। उसके बाद में फिर हमारा इंडिया में आने के बाद में हमारा आयुर्वेद का एक पोर्शन, बहुत बड़ा पोर्शन, जो यहाँ का एक वैल्यूएबल नॉलेज था, वो हमारे यूनानी का एक हिस्सा बन गया। तो मौजूदा जो यूनानी है इंडिया में, इसको हम देसी ट्रीटमेंट के नाम से जाने तो और ज्यादा अच्छा। मतलब ये एक तरीके से नाम भले यूनानी रहे, लेकिन ये देसी ट्रीटमेंट बन गया। ये इस तरीके से यहाँ पे ये डेवलपमेंट हुआ। यूनानी का एक कंसेप्ट हम भी बताते चले थोड़ा सा कि यूनानी कैसे काम करता है। यूनानी ने ट्रीटमेंट के अलावा, यूनानी का सबसे ज्यादा जोर यह है कि प्रिवेंशन, ऐसे काम करिए, ऐसी प्रिवेंशन के उसूल बनाए जिनसे बीमारी हो ही ना, बीमारी से बचने के उसूल बनाए उन्होंने। उसमें उन्होंने 6 चीजों को कहा कि ये असबाब सित्ता जरूरिया के नाम से बेसिक कंसेप्ट दिया कि असबाब सित्ता जरूरिया यानी 6 एसेंशियल थिंग्स जो हेल्थ के लिए जरूरी है। वो 6 चीजें जो हमारी हैं, उसमें सबसे पहले आती है हवा। यानी हवा में जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने की हवा की बेसिकली यूनानी में एक बहुत लंबी चौड़ी बहस है, कौन सी हवा हेल्थ के लिए अच्छी होती है, कौन सी नहीं अच्छी होती है। पहाड़ी की हवा, निचली हवा, जमीनी हवा, गर्म हवा, ठंडी हवा, हवा के ऊपर भी बड़ी लंबी तकलीफ। और ये यूनानी का मानना है कि हवा का असर आपके बदन पर होता है, जिससे या तो आपकी सेहत बढ़ती है या आप बीमार होते हैं। तो हवाओं का बहुत ज्यादा रोल है, यहाँ तक कि वबा के बारे में हवा का रोल बहुत ज्यादा है यूनानी कंसेप्ट के हिसाब से। तो एक जो एसेंशियल पॉइंट है कि हवा सही रहनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, सेहत के लिए जरूरी है। नंबर 2 जो एसेंशियल है, माकूल मशरूब कहते हैं, यानी कि वाटर एंड फूड। जो खाना पीना आपका है, वो खाने पीने में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं रहेगा, कम हुआ तो भी, ज्यादा हुआ तो भी, ये हेल्थ को बिगाड़ देगा। इसलिए प्रिवेंशन ऑफ द हेल्थ के लिए दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो खाना पीना। तीसरे नंबर पर है हरकत व सुकून बदनी कहलाता है, फिजिकल मूवमेंट एंड रेस्ट। यानी बदन को मूवमेंट भी देना जरूरी है और रेस्ट भी देना जरूरी है। अगर मूवमेंट ज्यादा दे दिया तो भी बीमारी हो सकती है, अगर रेस्ट ज्यादा दे दिया तो भी बीमारी हो सकती है। इसलिए इन दिनों का बैलेंस, ये तीसरा पॉइंट था कि बैलेंस ऑफ द मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड रेस्ट। इसी तरीके से हरकत और सुकून नफसानी, इमोशंस, गुड इमोशन और मेंटल रेस्ट। मेंटल, फिजिकल रेस्ट के साथ साथ मेंटल रेस्ट, ये हमारे जो है यूनानी का चौथा एसेंशियल पार्ट है कि मेंटल रेस्ट और गुड इमोशंस भी हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर मेंटल रेस्ट नहीं रहा तो हेल्थ नहीं रहेगी। उसके बाद में 5वां पॉइंट है कि नौमो यक्जा, कहते हैं स्लीप एंड जगना, बेदारी। यानी सोना भी जरूरी है, जगना भी जरूरी है, और दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। इसी तरीके से छठा जो पॉइंट है वो है एहतिबास इस्तिफराग, कहते हैं रिमूवल ऑफ द मॉर्बिडेबल मटेरियल एंड टॉक्सिन्स। यानी इसका बदन से जो चीजों को बाहर जाना चाहिए उनको बाहर निकालना जरूरी है, और जिन चीजों का बदन में रुकना जरूरी है उनको बदन में रोकना जरूरी है। ये 6 जो पॉइंट है, इनकी बुनियाद पर यूनानी प्रिवेंशन ऑफ द हेल्थ की बात करता है कि अगर ये 6 चीजों में बैलेंस रहा तो बीमारी से इंसान बचा रहेगा। उसके बाद में एक और कंसेप्ट है यूनानी का, हम बताते हैं, फिर अपनी बात को वो करेंगे
मिजाज का कंसेप्ट है यूनानी। मिजाज का कंसेप्ट क्या है कि ये 4 तरह के मिजाज होते हैं और इंसान 4 ग्रुप में है, गरम, ठंडा, हार, इरादी, याबिस, यानी 4। अगर टेम्परामेंट हम देखेंगे तो हम 4 ग्रुप में लोगों को डिवाइड कर सकते हैं कि इसका मिजाज ये है। 4 मिजाज की जो बुनियाद है वो खिल्त, ह्यूमर्स पर है कि जो लिक्विड बॉडी में पाया जाता है, जैसे कि वो बलगम, कफ, पित्त और ब्लड। तो इसकी बुनियाद पर एक लंबी बहस है कि खिल्त का नजरिया है, उसके बाद मिजाज का है। लेकिन कहने का मतलब है कि यूनानी में टेम्परामेंट का कंसेप्ट है, मिजाज का कंसेप्ट है, और उसकी बुनियाद पर ये पूरी थ्योरी और पूरी मेडिसिन फिर आगे बनती है उसी हिसाब से कि बीमारी कैसे पैदा होती है, फिर उसका इलाज कैसे है, गर्म बीमारी है कि ठंडी बीमारी है, और गर्म दवा देनी है कि ठंडी। एक लंबी मतलब बहस है, पूरी पैथी इसी पर डिपेंड है। तो कहने का यह है कि ये जो हमारा यूनानी सिस्टम है, और तकरीबन मेरे ख्याल से, मुझे तो चूंकि दूसरे सिस्टम का ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन तकरीबन ये आयुर्वेद, सिद्धा और होम्योपैथी और ये क्या रिक्पा, तकरीबन इसी चीजों पर काम करते हैं। उनके यहाँ भी तकरीबन यही उसूल है, कुछ डिफरेंट हैं, सब में कुछ अलग है, लेकिन वो इन्हीं उसूलों पर काम करते हैं कि सेहत को सब में तकरीबन प्रिवेंशन की बहुत अहमियत है कि बीमारी से बचना कैसे है, और उसके बाद में फिर इलाज, अगर बीमारी हो जाए तो इलाज का क्या उसूल है। और ये जो चीजें हैं, थ्योरीज हैं, ये थ्योरी हमारे एलोपैथिक से थोड़ा सा अलग है। इसीलिए हम लोगों को बहुत मर्तबा डिस्कशन का वो शिकार होना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का आंसर नहीं होना पड़ता है। जैसे कि ये कोविड-19 ये वबा है, वबा महामारी, इसको यूनानी टर्म में वबा कहते हैं। इसके ऊपर भी बहुत लंबी चौड़ी बहस की गई है, और बहुत मतलब बुकरात से लेकर के, हिप्पोक्रेट से लेकर के आज तक कि वबा से कैसे बचना है, क्या चीजें बचाती हैं, क्या चीजें नहीं बचाती, कौन सी दवा लेना है, कौन सी क्या प्रिकॉशंस लेना, ये पूरी लंबी चौड़ी गाइडलाइन है। इसी गाइडलाइन की रोशनी में आयुष मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी जारी की है। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे मेरे ख्याल से रुकता हूँ, और फिर क्वेश्चन आंसर और जो भी हो सवाल जवाब, उसके लिए हम बात करेंगे।